it for the school. He was in great fear that he will be scolded by his French teacher M. Hamel because he had asked them that he would ask the questions on participles. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. एक क्षण के लिए आर्थर ने सोचा कि वो वहां से भाग जाए और पूरे दिन भर आउट ऑफ डोर्स एंजॉय करे. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. It was so warm and bright. ये इतना गर्म और इतना ब्राइट था. मीन देयर वर सन रेज. The birds were chirping at the edge of the woods. Woods means small forests. And the chirping sound of the birds was coming out from the forest. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Or open field में back of the sawmill. Sawmill means ara machine where the timbers are planked. Prussian soldiers were drilling. Drilling means they were parading or they were doing rigorous exercise. It was all much more tempting than the rule for participles. ये सब ज़्यादा जो है लालच देने वाला था than the rule for participles, rules for participles की अपेक्षा. But I had the strength to resist and hurried up to school. लेकिन मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं अपने आप को रेसिस्ट कर सकता था, चेक कर सकता था, प्रतिरोध कर सकता था. And hurried up to school. And hurried up to school means और जल्दबाजी में स्कूल के लिए भागा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board means news board. जिस समय मैंने टाउन हॉल पास किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. तो न्यूज़ बोर्ड के सामने जो है एक भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से हमारे सारे बुरी खबरें जो है वहीं से आ चुकी थी. द लास्ट बैटल्स मतलब हारी हुई लड़ाई. द ड्राफ्ट मीन द डॉक्यूमेंट्स विच वर प्रिपेयर्ड फॉर अस. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और मैंने अपने आप से सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है. Then as I hurried by, as fast as I could go. और जैसे ही मैं जल्दबाजी में गया, इतना तेज जितना कि मैं जा सकता था. The blacksmith watcher who was there. Blacksmith watcher means a technician. Who was there? यहाँ वाचर का मतलब देखभाल करने वाला नहीं. Simply you can take the meaning a technician. Called after me, मेरे पीछे आवाज दी. Don't go so fast, bub. Bub means boy. इतना तेज मत जाओ boy. We will get to your school in plenty of time. तुम स्कूल अपने काफी समय में पहुंच जाओगे. I thought he was making fun of me and reached Hamel's little garden all out of breath. मैंने सोचा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो. And reached M. Hamel's little garden all out of breath. Out of breath means he was breathing heavily. और एम हैमल के छोटे से बगीचे के पास वो लगभग हाँफते हुए या बहुत तेज सांस लेते हुए पहुंचा. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. सामान्य रूप से जब भी स्कूल शुरू होता था, there was a great bustle. Great bustle means great commotion. ढेर सारा कोलाहल या शोर शराबा होता था. which could be heard out in the street. जैसे बाहर गली में सुना जा सकता था. The opening and closing of desk के ओपन होने और क्लोज होने की आवाज़. Lessons repeated in unison. In unison means altogether. और lessons को जो repeat किया जाता था एक साथ. Very loud with our hands over our ears to understand better. अपने हाथ को अपने कानों पर रखे हुए. To understand better. अच्छी तरह से समझने के लिए. And the teacher's great ruler rapping on the table. और टीचर का वो ग्रेट रूलर माने बड़ी सी जो पटरी थी, आयरन रूलर,
Hello, is my voice audible to everyone? Faiz, it's okay now. See, but now it was also still. लेकिन अब ये सब इतना I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. commotion या कोलाहल को जो है काउंट किया कि जिससे विदाउट नोटिसिंग मैं अपने टेबल पर जा सकूं और विदाउट बीइंग सीन या बिना देखे गए हुए but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन अवश्य ही वहाँ सब कुछ ऐसा था, इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो. Though the window I saw my classmates, through the window I saw my classmates, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा. Already in their places means all of them were already in their seats. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler. Or M. Hamel, he was moving to and fro with his terrible iron ruler under his arm. अपनी भुजाओं के नीचे उस भयानक आयरन रूलर को लिए हुए. He was walking up and down, means he was moving to and fro. I had to open the door and go in before everybody. और मुझे दरवाज़ा खोलना था और हर आदमी के सामने से होकर जाना था. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप कल्पना कर सकते हो मैं कितना शर्माया हुआ और कितना डरा हुआ था. But nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. But nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. M. Hamel saw me and said very kindly. M. Hamel ने मुझे देखा and said very kindly, और बहुत ही काइंडली कहा, Go to your place quickly, little friends. Little friends, अपनी जगह पर जल्दी जाओ. We were beginning without you. हम लोग बिना तुम्हारे शुरू करने जा रहे थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं बेंच के ऊपर कूदा and sat down at my desk. अपने डेस्क पर बैठ गया. Not till then. तब तक नहीं. When I had got a little over my fright. उस समय तक मैं अपनी फ्राइट पर, डर पर जो है थोड़ा ओवरकम कर चुका था. Did I see that all our teacher had on his beautiful green coat? Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? क्या मैंने ये देखा कि हमारे टीचर जो है अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे. His frilled shirt means झालादार शर्ट, and the little black silk cap, और छोटी काली सिल्क की कैप, all embroidered means this was in ornamental style. एम्ब्रॉयडरी वर्क उसके साइड्स में था. that he never wore except on inspection and prize day, जिसको कभी नहीं पहनते थे सिवाय इसके कि इंस्पेक्शन डे हो या प्राइज डे हो. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल इतना स्ट्रेंज, इतना विचित्र और इतना solemn, पीसफुल दिखाई देता था, महसूस होता था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ आर्थर के लिए ये थी कि on the last benches the village people were also sitting. Old Hasser with his three-cornered hat, अपने three-cornered hat के साथ Old Hasser, the farmer mayor, पहले का मेयर, the farmer postmaster and several others besides, and several means many others besides means के अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग बैठे थे. Everybody looked sad, हर आदमी दुखी दिखाई देता था. And Hasser had brought an old primer,
और हासर जो है लेकर आया था एक ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर मीन्स जो अल्फ़ाबेट जो सिखाने वाली बुक होती है, प्रवेशिका, उसको लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एजेस मीन्स जो कोनों पर मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने बड़े चश्मे के साथ। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, दैट जो कि पड़ा हुआ था अक्रॉस द पेजेस। While I was wondering about it all, जिस समय इसके बारे में मैं गहराई से I was thinking deeply about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children. लेकिन जिस समय अपनी चेयर पर वो माउंट हुए बैठे, and in the same grave and gentle tone, grave means serious और gentle tone में उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए यूज किया था, my children, this is the last lesson I shall give you. The last lesson that I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, केवल जर्मन स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन में पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो मीन्स न्यू टीचर कम्स टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, एंड आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग बहुत ही अटेंटिव रहो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तब किस तरह से जोर की क्लैपिंग साउंड थी मेरे लिए। ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। Oh, the wretches means the wicked persons, or simply he was calling to Germans. That was what they had put up at the town hall. ये वही था, means that order was put on the bulletin board in the town hall. My last French lesson, why? मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन क्यों? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. मैं बड़ी मुश्किल से जानता था कैसे लिखूं। I should never learn anymore. और मुझे अब और ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए। I must stop there then. अब मुझे अवश्य वही बंद कर देना चाहिए। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. Now here the author was repenting for his carelessness, कि अब उसे कोई लेसन नहीं लर्न करना होगा। He was spending his time for seeking birds' eggs, सर्चिंग बर्ड्स एग्स, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, या सार पर स्लाइडिंग के लिए जाना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस इन अ व्हाइल एगो। एक क्षण पहले हमारी बुक्स जो हमारे लिए एक न्यूसेंस महसूस होती थी, एक ट्रबल या परेशानी महसूस होती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में इतनी भारी भरकम। माई ग्रामर एंड माई लेस हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर और मेरे हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो हमारे पुराने फ्रेंड्स हो चुके थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मुझे उन्हें फिर से नहीं देखना चाहिए। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मुझे सब कुछ जो है भुला दिया उनके रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्रैंकी मीन्स स्ट्रेंज और वेम्सी फेलो, झक्की आदमी। ये सब कुछ मुझे भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. ये उसके लास्ट लेसन के सम्मान में था कि वो संडे के फाइन क्लोथ्स को पहन रखे थे।
and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मैं समझ गया कि विलेज के जो ओल्ड मैन एट द बैक ऑफ द रूम और इन द बैक ऑफ द रूम वो क्यों बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू. ये इसलिए था क्योंकि वो भी दुखी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं जा चुके थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और ये उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक्स कहने का उनकी 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अब सम्मान देने के लिए अपने कंट्री को, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं थी. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. While I was thinking of all this, I heard my name. जब मैं इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना, अब मेरा टर्न था to recite the rules of participles. What would I not have given to be able to say and dreadful rule for the participle all through. मैंने जो है मैं इस लायक नहीं था दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक रूल को पार्टिसिपल्स के लिए. ऑल थ्रू मीन्स पूरा लर्न नहीं किया था. वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत जोर और स्पष्ट. एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के मैं उसे बता सकूँ, रिसाइट कर सकूँ. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मीन्स द ऑथर स्टक अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. अपने डेस्क को पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग, मीन बीटिंग ऑफ हिज हार्ट वॉज फास्ट एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत न करते हुए he was standing there. I heard M. Hamel say to me, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, I won't scold you little French. लिटिल फ्रेंच, मैं आपको डांटूंगा नहीं. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें अवश्य बुरा, पर्याप्त बुरा महसूस करना चाहिए. से हाउ इट इज, देखो ये ऐसा होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हर दिन हम अपने आप से कहते रहे वाह. वाह मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास ढेर सारा समय है. आई लर्न इट टुमारो, मैं से कल लर्न करूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप समझते हो कि हम कहाँ तक आ चुके हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, वही सबसे बड़ी परेशानी है अल्सेस के साथ. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो कल से लर्निंग बंद कर देती है. Now those fellows out there will have the right to say to you, बाहर लोगों के पास अब अधिकार होगा तुमसे कहने के लिए, how is it, ये कैसा होता है. You pretend to be Frenchman, आप बहाना करते हो कि आप फ्रेंचमैन हो, आप फ्रेंच लोग हो. And that you can neither speak nor write your own language, और आप ना तो बोल सकते हो और ना अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रांस, पुअर लिटिल फ्रांस, तुम सबसे खराब नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोच? तिरस्कार करना, रिब्यूक और स्कोल्डिंग आल्सो कैन बी इंक्लूडेड इन इट, कि हमें इस सब के लिए जो है तिरस्कार करना चाहिए अपने आप से. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स इतने एनेक्सियस नहीं थे, इतने चिंतित या परेशान नहीं थे कि तुम्हें लर्न करने के लिए कहें. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने प्रेफर किया कि तुम फार्म पर काम करो या मिल्स में काम करो. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जैसे कि तुम्हारे पास और ज़्यादा पैसा हो जाए. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, अब मुझे भी ब्लेम किया जाना है.
हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? तो हमारे लेसन्स लर्न करवाने के बजाय क्या मैंने अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए नहीं कहा था? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे? और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से दूसरी चीज। यम हैमल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। यम हैमल के बारे में बात करते रहे, saying that it was the most beautiful language in the world, ये कहते हुए कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे ज़्यादा तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसकी सुरक्षा हमेशा हमें करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. लेकिन जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, जब तक वो अपने लैंग्वेज को टाइटली होल्ड किए रहते हैं, तेज पकड़े रखते हैं, ये ऐसा होता है जैसे कि उनके पास प्रिजन से बाहर निकलने की चाबी हो। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लिए अपना लेसन पढ़ा। I was amazed to see how well I understood it. मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि कितना अच्छी तरह से मैं इसे समझ गया। And he had seemed so easy, and all he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा हमें इतना आसान महसूस हुआ, मैं भी सोचता हूँ कि मैंने इतना केयरफुली जो है कभी सुना भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी हर चीज़ को इतना धैर्य के साथ पहले से एक्सप्लेन भी नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा पूरा महसूस हुआ कि जाने से पहले वो सब कुछ दे देना चाहते थे जो वो जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वन गो, वन स्ट्रोक मीन्स वन गो में वो हमारे हेड्स में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद एक राइटिंग लेसन हमारे पास था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room. एक लिटिल फ्लैग्स की तरह दिखाई देती थी, जैसे वो लिटिल स्कूल रूम में फ्लोट कर रही हों। Hung from the rod at the top of our desk, एक रॉड से लटकी हुई हमारे डेस्कटॉप पर। You ought to have seen how everyone set to work. आपको देखना चाहिए था कि हर आदमी कैसे काम में लगा हुआ था। And how quiet it was, और कितना शांति थी यहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल इकलौती आवाज़ सुनाई देती थी जो स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ऑन द पेपर, पेन की जो स्क्रैचिंग साउंड या खरोचने की आवाज़ पेपर पर आती थी। वंस सम बीटल्स फ्लेव इन, बीटल्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, एक बार कुछ बीटल्स जो अंदर उड़े। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी आदमी ने उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं पे किया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक किसी जो सबसे छोटा हो वो भी। वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि सीधे अपना काम कर रहे थे, फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे पेपर पर। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो फ्रेंच हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कूइंग साउंड रूफ पर पिजन की आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स को, यहाँ तक कि पिजन्स को भी जर्मन में गवाएंगे।
Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब भी मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर देखा, मैंने एम हैमल को मोशनलेस बैठे हुए देखा अपनी चेयर में, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज पर देखते हुए, देन एट अनदर, तब एक दूसरे पर, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, जैसे वो देखना चाहते हो कि उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज कैसे दिखाई देती थी. फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, कल्पना. For 40 years he had been there in the same place. 40 years तक वो उसी जगह पर रहे, with his garden outside the window and his class in front of him. उनका गार्डन जो विंडो के बाहर था, and his class in front of him, और उनकी क्लास उनके सामने. Now say, just like that, उसी तरह, only the desk and benches had been worn smooth. केवल डेस्क और बेंचेस जो थी had been worn smooth. Had been worn means घिस पिट गए थे. The walnut trees in the garden were taller. जो walnut trees थे गार्डन में वो लंबे हो चुके थे. And the hope vine, this is also a kind of creeper that he had planted himself twined about the windows to the roof, जिसको उन्होंने खुद से लगाया था, वो twined about the windows to the roof, मतलब वो घूमकर लिपटी हुई विंडोज से रूफ तक जा रही थी. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. उस बेचारे आदमी के लिए इस सब को छोड़कर जाना किस तरह उसके दिल को तोड़ चुका होगा. To hear his sister moving about in the room above, अपनी सिस्टर को ऊपर के कमरे में घूमते हुए सुनकर. Packing their trunks, अपने ट्रंक्स या बॉक्सेस को पैक करते हुए. For they must leave the country next day, क्योंकि उस कंट्री को उन्हें अगले दिन छोड़कर जाना था. But he had the courage to hear every lesson to the very last, लेकिन उनके पास courage था, हिम्मत थी, to hear every lesson to the very last, हर एक लेसन को लास्ट तक सुनने के लिए. After the writing, we had a lesson in history. राइटिंग के बाद हिस्ट्री का एक लेसन था. And then the babies chanted their ba, be, be, boo, boo. Down there at the back of the room, old Hasar had put on his spectacles and holding his primer in both hands. So these were the French alphabets. Babies इसी तरह की chanting कर रहे थे. They were pronouncing the words ba, be, be, bo, boo. नीचे at the back of the room, रूम के पीछे, ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने चश्मे पहन रखे थे. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने प्राइमरी अल्फाबेट बुक को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए था. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ लेटर्स को स्पेल कर रहा था. स्पेल्ड मीन्स ही वाज रीडिंग द स्पेलिंग्स. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप उसे देख सकते हो कि वो भी रो रहा था. His voice trembled with emotion, उसकी आवाज भावना के साथ कांप उठी. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. लेकिन ये सुनकर, उसकी बात को सुनकर इतना मजाकिया था that we all wanted to laugh and cry, कि हम सब लोग चाहते थे कि हम हंसें और चिल्लाएं. How well I remember it, that last lesson, कितना अच्छी तरह से मैं याद करता हूँ उस लास्ट लेसन को. All at once the church clock struck 12, और all at once the church clock ने 12 बजाए. Then the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. हमारे विंडोज के नीचे प्रूसियन के ड्रिल से वापस आने की ट्रम्पेट की आवाज, नगाड़ों की आवाज सुनाई दी. Sounded under our windows. Young Hamel stood up very pale in his chair. Very pale means very weak. अपने चेयर में खड़े हुए. I never saw him look so tall. मैंने उन्हें इतना लंबा कभी देखा नहीं था. My friends, said he. I, but something choked him. He could not go on, means he could not speak anything more. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, the blackboard की तरफ मुड़े,
एक चाक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी की ताकत के साथ उसे पकड़े हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना लंबा इतना बड़ा लिखा जितना कर सकते थे। वाइव ला फ्रांस मीन्स, वाइव ला फ्रांस मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस, या फ्रांस अमर रहे। देन स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall, और तब वो रुक गया और अपना वॉल के आगे सहारा लेकर खड़े हुए। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना एक वर्ड बोले हुए एक ऐसी जेस्चर या ऐसी बॉडी लैंग्वेज या ऐसी भावभंगिमा बनाई अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हुआ, यू मे गो।